फर्जी वाज अ शो वेयर यू गॉट रिकग्निशन एंड आपको आज भी लोग फिरोज कह के बुलाते हैं. आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट डू यू सी अ ब्लेसिंग एंड अ डिसगाइज कि आपको सिर्फ फिरोज के नाम से बुलाते हैं, और यू फील रियली हैप्पी दैट ओ पीपल कॉल मी एंड यू वांट पीपल टू कॉल यू फ्रॉम ऑल योर कैरेक्टर नेम. अगर लोग मुझे फिरोज बुलाते हैं तो मैं अपने आप को इतना ही बोलता हूँ कि यार शायद मेरी किस्मत अच्छी थी और मैंने उस कैरेक्टर को इतना अच्छे से किया कि लोगों के जहन में इतना बस गया. बोले देखें जो जाफरी साहब का कैरेक्टर है सूरमा भोपाली, वो आज तक लोग सूरमा भोपाली के नाम से, बिकॉज सम एक्टर्स मेक द रोल सो ब्यूटीफुल दैट दे आर फॉरएवर रिमेंबर्ड विद दैट. सो आई फील इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर व्हेन समबडी कॉल्स यू फ्रॉम योर कैरेक्टर नेम. आपके बिना तो अधूरा भी अधूरा है एंड मैंने तो दोनों फिल्म भी देखी है, मुझे वो भी काफी पसंद है. और मुझे बताइए कि ये जब आपने रोल लिया तो कितने प्रेपरेशंस लगे इसके लिए? जब मेरा पहला ब्रीफ था, मुझे जो हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं वैभव मोदी जी, उन्होंने यही बोलते कि पूजन जैसा तू है ना वैसा नहीं है ये कैरेक्टर, वो ऐसा फन लविंग गूफी इतना नहीं है, ये सॉर्टेड है, बट व्हाट ही इज डूइंग ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, तो ऐसा है ये. बट इफ आई आस्क यू व्हाट हैज बीन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू? आर्टिस्ट तो आपको थिएटर से बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ होता नहीं, बिकॉज वहाँ हर रोज़ वो एक लैब की तरह है, क्योंकि वो बिल्कुल लाइव ऑडियंस के साथ एक्सपेरिमेंट है. Hi, this is Astha and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. Today we have with us star cast of Fisadi. वैसे फिसडी क्या है? Failure. And जब मैंने ट्रेलर देखा, so I just connected the spot because it is so accurate, so relatable. It has a lot of layers though. Hello and welcome to Awesome TV. How are you all doing? Thank you. We're doing great. How are you Awesome. You're doing awesome as well. Just like आगे ना awesome हो तो फिर कैसी बात है? just क्या like है how आपका the- पंचलाइन आपने बोला it makes you Welcome awesome. to Awesome TV, नहीं, वो which आप- lets you be simply awesome. Simply awesome. It's letting us being simply awesome. Simply awesome. Yeah, definitely. Just like the trailer, it is Right. simply awesome. But again, it has a lot of relatability factor, when it comes to Indian parenting and stuff. What made you all say yes to the show? I feel the writing of the show, it's brilliantly written, it's very beautifully written, and I feel that the dynamics of the relationships that this show explores, I don't think so it's been explored in that fashion anywhere else, at least not to my knowledge. So we read the script and we instantly related to the characters because this is something that has happened with all of us. It's just that I don't think so it's been projected the way, the writer has tried to project it in our show. So I think it was a instant yes for me at least. Of course, the writing and the relatability factor and the characters, the way they are being shown in this show, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर था और इतना सुंदर तरीके से लिखा गया है ये शो. जब आप देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा. और हमारे डेट्स भी अवेलेबल थे. वो सबसे important part सबसे होता है. इम्पोर्टेंट फैक्टर है. I was thinking what will I say new. I mean, but the thing is वही writing is the main, I think, the key factor to say yes. So Bhuvan and Poojan, you guys are playing brothers. So did you all have a conversation before, or you all just met during the show? How was it? आप पहले से जानते थे एक दूसरे को? हम एक दूसरे से मिले नहीं थे, बट मैं obviously पूजन का काम देख चुका था and he's a very fine actor and I was happy to know that he's playing the younger brother because I felt that, and Gopal bhai as well, I feel that उनका तो मैं fan रहा हूँ. पता चला जब ये लोग on board है तो obviously the feeling was great यार. Yeah, I think हमारा ऑफ स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया था हम सबका आपस में, बिकॉज टाइम हम काफ़ी स्पेंड करते थे सेट्स पे. So yeah, I think it was more than the show. I think we made like a equation for life with each other. Wow. मैं इनकी बहुत जान खाता था. हाँ? In what way? नहीं मतलब गाइडेंस को लेके और क्या मतलब साथ हमेशा साथ ही चल रहा हूँ, साथ ही कुछ खाना खा रहे हैं और क्या कर रहे हो आप. तो मेरे लिए तो शुरू में ऐसे व्हेन आई गॉट टू नो दैट भुवन इज गोना बी प्लेइंग माय एल्डर ब्रदर्स पार्ट, तो मुझे था कि यार इतने बढ़िया एक्टर हैं, मैंने फर्जी देखी थी, मैं कैसे करूँगा. मेरी ऑनेस्टली जब मैं इलाहाबाद जा रहा था फ्लाइट में भी तो मेरी थोड़ी सी फट रही थी. मैंने कहा यार अब शूट शुरू होने वाला है, कल को मैं कुछ खराब ना कर दूँ. सच अ गुड एक्टर इवन हिम. ऐसा रुतबा है हमारा. बट देन हम धीरे धीरे मिलते गए, हमने हमारी आइस ब्रेक हो गई और फिर हम कंफर्टेबल होकर काम करते गए. अच्छा, आप बताइए आपका कैसा रहा इनके साथ काम करने का? मेरा कहना है कि अगर इतनी गर्मी में आप किसी को इलाहाबाद ले जाओगे और एक साथ रखोगे तो या तो दोस्ती होगी बहुत गहरी या दुश्मनी होगी. तो दुश्मनी नहीं हुई तो दोस्तियां बहुत गहरी हो गई. जी जी, आपकी जो एंट्री थी वो काफ़ी फनी भी थी, बट आपके रोल के बारे में ना मैं ज़्यादा कुछ जान नहीं पाई हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका कैरेक्टर कैसा होने वाला है?
मैं आपको एक बात बताऊं इस बारे में? जी, हाँ जी, आप ज़रूर। देखिए। बट ऑडियंस को हमेशा वो क्यूरियोसिटी होती मैं है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने हाँ भी कहा सीरीज़ को। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसमें बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारी लेयरिंग है, मज़ेदार कैरेक्टर। तो वो ऑडियंस जब देखेगी तो उनको भी लगेगा कि हाँ, ऐसा एक सीनियर या तो उनकी लाइफ में है या होना चाहिए। सबसे कलरफुल कैरेक्टर है हमारे शो का पीछू दादा। करेक्ट। Are you playing a bully or something? Not exactly. I am playing like an elder brother only. अच्छा। एल्डर So ब्रदर he is elder brother of the elder brother. एल्डर ब्रदर के एल्डर। ओह माय गॉड। बट ठीक है, अब स्टोरी की बात करें। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेलर देखा फर्स्ट हाफ तो काफ़ी फनी लग रहा था, अच्छा लग रहा था, बट उसके बाद कम्स अ सीरियस पॉइंट जहाँ पर काफ़ी लेयर्स, एज आई सेड इन माय इंट्रो दैट काफ़ी लेयर्स भी हैं। उसके बारे में बताइए। जो इंडियन पेरेंटिंग होती है वहाँ पर कहते हैं कि जो सबसे एल्डर सिबलिंग होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो भार है वो पहले आ जाता है। आपने अपनी रियल लाइफ में किस तरह से रिलेट किया है इस चीज़ को? तो मैं तो अपने घर में यंगर सिबलिंग हूँ। या यू हैव अ एल्डर सिस्टर? I have an elder sister, so I feel that I do think it is true to a large extent, because I don't know whether parents are actually pressurizing the older kid to be, like a flag bearer or a margdarshak or a guide for the younger sibling, but I feel this pressure somehow subconsciously we only take. And I feel that we all are different people, we are all different individuals, so this pressure is not needed only. So this is a dynamic that our show has explored very beautifully, that how much really the parents are putting on you and how much you're actually taking yourself, and that's a really fine line, and I think it's been depicted very beautifully, and we could feel it while shooting also. एंड अपनी लाइफ को लेके जब आपको किसी शो में रियलाइजेशन होते हैं ना कि हाँ यार ये बात सच है, बट मैंने इस बारे में ऐसे कभी सोचा नहीं है, तो आई थिंक वो बहुत एक ब्लेसिंग होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए जब वो सेट से कुछ लेके जाता है अपनी ज़ाती लाइफ की अंडरस्टैंडिंग जो उसको उससे पहले नहीं थी. So I feel that India, not just India, I feel throughout the world, this is a pressure that elder siblings somehow take on themselves, or somehow parents are also responsible to it, put that pressure on the kids, and how to do it and how not to do it, how much of it is fine, you'll get to know better when you see the show. But always, when you have an elder sister, but when brothers grow up, they have that tendency to be more protective. Right. And वो थोड़े से overpowering हो जाते हैं in some ways that Right. just to protect their sister. आपके साथ होता है ऐसा? नहीं, मेरी बहन मुझे लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, to an extent that it starts to annoy me only. Oh. So she's been very protective of me, and till date she is. Like if today anything happens, she is not the first person who's probably going to call me or say anything or such, but I know deep down somebody who will be actually really really annoyed and most hurt if anything wrong happens with me is my sister, and she has this extremely protective streak, and that is the same thing which is why I could relate to it instantly, because I've seen it happening in my house, and she does it till I think old enough to take care of myself and take my life decisions, but the kind of authority she still feels she has over me in our relationship, it fascinates me. It fascinates me that how this bond of blood is is above any other bond in the world. That's so beautifully explained. I'm sure a lot of siblings are relating to it. Yeah, I'm sure younger ones, older ones, और हमारे में तो 3 हैं. और नॉट जस्ट द ब्लड रिलेशन ऑल्सो, आई फील हमारा शो और ये भी दिखाता है समटाइम्स द रिलेशनशिप्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड आर वे अबव रिलेशंस दैट आर रिलेटेड बाय ब्लड. बहुत प्यारी तरीके से ये बात कही गई है हमारे शो के अंदर, और है आपके है कोई बड़ा भाई बहन तो वो भी करते हैं आप पे दादागिरी? नहीं, एक्चुअली नहीं. I mean, हमारे केस में थोड़ा डिफरेंट है. शी इज अ बिट इंट्रोवर्ट एंड आई एम स्टिल एक्सट्रोवर्ट, तो हमारा केस थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे. आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो लोग ले लेते हैं बड़े भाई या बड़ी बहन हमारे, वो आई थिंक हमको कभी कभार लगता है कि वो हमें ओवर पावर कर रही है, बट उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग तो ठीक कर रहे हैं, हमको नहीं वो चीज़ समझ आती कि अच्छा यार आप ये सोच रहे थे हमारे बारे में, हमारा अच्छा ही सोच रहे होते. वही बात है जो पेरेंट्स के साथ भी होती है कि पेरेंट्स आपका हमेशा अच्छा ही सोच रहे होते हैं. बट वो एल्डर सिबलिंग का एक चक्कर है कि उसको एग्जाम्पल तो बनना ही है, 100%. चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है. अगर वो अच्छा होगा तो ये होगा कि देखो उससे सीखो, वो खराब होगा तो देखो उसकी तरह मत नहीं करना है.
तो वो उसके बेचारे का ये है कि और आपकी लाइफ का इनिशियल हिस्से का मेजॉरिटी पार्ट होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है, ये उसका भाई है। करेक्ट। क्योंकि आपके नेबर्स आपका नाम शायद नहीं जानते होंगे, मेरे नेबर्स आज तक वो बोलते हैं मीनू का, अब जान गए हैं बिकॉज वो फिल्मों में देख लिया उन्होंने मुझे, लेकिन बट पहले मेजर एक्सटेंट ऑफ माई लाइफ मेरे को ये बोले जाते हैं तो मीनू का छोटा भाई है, ये मीनू का छोटा भाई है। तो हमारी आइडेंटिटी होती है हमारे एल्डर ब्रदर या सिस्टर की वजह से। तो आई थिंक अगर आपका पूरा शुरुआती दौर इसमें बीता है, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा यही है कि ये उसका भाई है, आप सेकेंडरी फिगर पहले ही माने जा रहे हो दुनिया में, तो आप कैसे अपने आप को प्राइमरी फिगर मानोगे जब दुनिया आपको पूरी बोल रही है कि आप सेकेंडरी फिगर हो। बट जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, आप तीनों के बारे में, यू गाइस हैव अ ग्रेट ग्राफ। ओके, स्टार्टिंग विद भुवन, आपने मतलब नुक्कड़ ड्रामा से लेके फर्जी तक, ठीक है, फिरोज तक, एक बहुत ही बढ़िया और बड़ी जर्नी रही है आपकी। लाइफ हैज़ नॉट बिन वेरी इजी, यू हैव एक्चुअली लर्नड एक्टिंग, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, फिर लेट इट बी टेलीविजन और यू नो लेट इट बी फिल्म्स। बट अब जब आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाउ डू यू टेक द प्रेशर ऑन यू? There is no pressure यार, honestly थोड़ा तो प्रेशर होता होगा ना। मतलब I can say a sob story for better attraction on social media, that definitely will help me, but I really never have thought of it as like a struggle or a hardship or anything like that. I enjoy what I do. Yeah. I really enjoy what I do, and I feel like getting up and going on the set, and I feel when you are in a job that makes you feel like that, you're blessed. So I just wake up in the morning and I thank my stars and the God who's blessed me to put me in a profession where I really enjoy doing what I do. तो प्रेशर मेरे पे ना कभी था ना मैं कभी होऊंगा प्रेशराइज किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि मुझे लगता है वो आपके काम को हैम्पर करता है। एक्टिंग में मेरे को ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है एक्टिंग की, लेकिन जितना मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है सिनेमा एक्टिंग में होती है वो होती है रिलैक्सेशन। और आप किसी भी तरीके का प्रेशर ले रहे हैं कि चलिए कोट एंड कोट फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कि इसमें मेरा पार्ट बड़ा है या इसमें मेरा पार्ट छोटा है या फिर ये शो मेरे कंधों पर रेस्ट करता है, so that's going to come in front of your job and you obviously won't be able to do justice to your work. तो ये प्रेशर लेना ही नहीं है आपको कभी, ये आपको एंग्जाइटी देगा और वो तो आपको काम खराब ही करने वाली है। हाँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा बैगेज हो जाता है, इट अफेक्ट्स योर एक्टिंग, आई फील। अच्छा, मैं हमेशा ये बात पूछता हूँ कि अगर कोई फिल्म कर रहा हूँ सपोजिटली और वो फिल्म नहीं काम करे तो मैं नेक्स्ट डे क्या करूँगा? कारपेंटर बन जाऊँगा? नहीं बनूंगा, राइट? ठीक है, आई वुड स्टिल वांट टू बी एन एक्टर, आई प्रोबेबली बी ए लेसर नोन इन जनरल पब्लिक, but that doesn't take away from the fact that I would still want to get up and still want to go on set. So because that factor remains constant, तो मुझे इतना पता है कि वो प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, काम में मज़ा आना चाहिए बस, बाकी सब बाय प्रोडक्ट है उसका जो इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा, आई डोंट वांट टू बी अ सेंट ऑन दिस इंटरव्यू एंड लेकिन नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, हाँ जी हमें पैसे नहीं कमाने, हाँ जी हमें फेम नहीं चाहिए, ऑल दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट्स नॉट द क्रक्स ऑफ द थिंग। क्रक्स इज द क्राफ्ट एंड द क्रक्स इज इफ यू एंजॉय योर जॉब और नॉट। बट यू नो फर्जी वॉज अ शो वेयर यू गॉट रिकग्निशन एंड आपको आज भी लोग फिरोज कह के बुलाते हैं। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, व्हाट डू यू सी अ ब्लेसिंग एंड अ डिस्गाइज कि आपको सिर्फ फिरोज के नाम से बुलाते हैं, और यू फील रियली हैप्पी दैट ओ पीपल कॉल मी एंड यू वांट पीपल टू कॉल यू फ्रॉम ऑल योर कैरेक्टर? No, that's also nice. Some people do call me by other names. See, there is an audience for everything. I do feel very happy and I genuinely have no complaints. अगर लोग मुझे फिरोज भी बुलाते हैं तो मैं अपने आप को इतना ही बोलता हूँ कि यार शायद मेरी किस्मत अच्छी थी और मैंने उस कैरेक्टर को इतना अच्छे से किया कि लोगों के जहन में इतना बस गया। और ये आज से नहीं चला आ रहा है यार, इतने पुराने ज़माने की भी कुछ फिल्में आप जैसे अगर आप शोले देखें, जो जाफरी साहब का कैरेक्टर है सूरमा भोपाली, वो आज तक लोग सूरमा भोपाली के नाम से, बिकॉज सम एक्टर्स मेक the role so beautiful that they are forever remembered with that. Amjad Khan will forever be Gabbar Singh for all of us. So I feel it's a compliment for an actor when somebody calls you from your character name. और इसको बिल्कुल बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये आप it's a reassurance that you're doing a good job. That's amazing. अच्छा, coming to you now. ठीक है, आपके बिना तो अधूरा भी अधूरा है एंड मैंने तो दोनों फिल्म भी देखी है, मुझे वो भी काफ़ी पसंद है और दोनों ही प्रोजेक्ट्स आपके लिए काफ़ी बेहतर है। मुझे बताइए कि ये जब आपने रोल लिया तो कितने प्रेपरेशंस लगे इसके लिए? तो मेरे लिए ये रोल काफ़ी अलग था, जैसा मैं हूँ एज अ पर्सन और एज अ कैरेक्टर फिल्म में। ऑफ कोर्स हम जब काम करने जाते हैं तो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हम देखते ही हैं क्या है क्या नहीं। जो चीज़ें थी मेरे लिए, जब मेरा पहला ब्रीफ था, मुझे जो हमारे शो के प्रोड्यूसर हैं वैभव मोदी जी, उन्होंने यही बोला कि पूजन जैसे तू है ना वैसा नहीं है ये कैरेक्टर, वो ऐसा फन लविंग गूफी इतना नहीं है, ये सॉर्टेड है, बट व्हाट ही इज़ डूइंग ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग, तो ऐसा है ये।
तो मेरे को ये सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी कि यार इसको करने में मज़ा आएगा, मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। और जैसे हमारे जो डायरेक्टर हैं हमारे शो के, उन्होंने मुझे पूजन यही बोला, पहले दिन यही बोला कि पूजन इसमें हर एपिसोड में इसका ग्राफ अलग है, तो तुम नोट कर लेना क्या करना है क्या, क्योंकि हम शूट तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे 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 शूट करेंगे। तो मेरा यही था कि यार वो हाँ ये नोट बनाना पड़ेगा, क्या भी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मुझे इन चीज़ों का ध्यान रख के बहुत ही ध्यान रखना था कि कैसे पूरा शो में कैसे काम करेगा कैरेक्टर। तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये करना। And I think actors want to be versatile, Yeah, and this is your way to prove, because यहाँ पर आपको बहुत सारे layers में काम करना है, so definitely we will see one more side, different side of Poojan for sure. क्योंकि इससे पहले जो भी था वो अलग ही था, और अब थोड़ा ये थोड़ा comic अलग है। timing and all. हाँ हाँ। But you do incredible in that also. मतलब लोगों को हंसाना भी एक कला है, I must say. Volcano of talent है बेटा जी, volcano of talent. Volcano of talent, wow. बट टाइमिंग की बात की जाए तो गोपाल सर तो जी गोपाल जी, आपके बारे में तो मतलब लिटरली आई वाज गोइंग ऑन रीडिंग एंड आई एम लाइक इट्स नॉट गोना स्टॉप बिकॉज़ यू हैव डन गूगल का so much. 70% डेटा जो है वो सिर्फ इनके वो ले रखा है ना। But one thing I really appreciate about you is you don't like to repeat the same graph of work. You always want to do something new, right? Something better, something मतलब new. वो मेरे ख्याल हम सब ट्राई करते हैं ऐसा कि कुछ अलग एस्पेक्ट्स अपनी, क्योंकि आप अपने आप को भी डिस्कवर कर रहे होते हो ना उसके थ्रू। हर एक्टर का होता है कि वो अपने सारे एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करे और वो मौका मिले, सब जब मौका मिलता है करते हैं। इससे पे हार्वी बादम जी ने एक बात बोली थी that when I die I hope all my characters sit on a table and they have nothing to talk about because they're also different. नाइस Wonderful. नाइस। This is wonderful. But if I ask you, you know, what has been the best platform for you? प्लेटफॉर्म Because see, again, YouTube you have done, you have हाँ. done television, films and OTT, everything. What do you think has been the best platform? आर्टिस्ट तो आपको थिएटर से बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ होता नहीं, बिकॉज वहाँ हर रोज़ वो एक लैब की तरह है फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ आप अपने आइडियाज़ टेस्ट कर सकते हो। और उसमें ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर दिया तो वो हो गया सॉर्टेड। वहाँ हर रोज़ हर शो में आपको एक ही कैरेक्टर में इतनी कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि ओह अच्छा ये पॉज से इतना डिफरेंस हो सकता है, या ये लाइन थोड़ा स्लो बोलूँगा तो ये हो सकता है। तो वो क्योंकि वो बिल्कुल लाइव ऑडियंस के साथ एक्सपेरिमेंट है, और इसमें आपके हाथ में आपको पता नहीं होता। जैसे अब ये सड्डी का जो जितने दिन हो गए हैं शूटिंग के हुए, अब मुझे बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन प्ले में कैसा होता है कि वो पूरा वहीं पे करना है आपको, और वो नाटक ऑडियंस के साथ बन रहा होता है कि वो सिर्फ एक्टर नहीं बना रहे हैं, वो हम जब शब्द देते हैं तो नाटक ऑडियंस और एक्टर के शब्दों के बीच में यहाँ उस स्पेस में ही बन रहा होता है। तो उस लिहाज से वो बहुत एक्साइटिंग है थिएटर का स्पेस, बट उसमें इस तरह का पैसा, इस तरह का ग्लैमर नहीं है। तो शान शौहरत हाँ, तो आप थिएटर करने के बाद ये नहीं बोल सकते हैं बस बंगले हैं, गाड़ी है, बैंक हाँ, बैलेंस है। करेक्ट। क्या है तुम्हारा? मेरे पास शेक्सपियर। मेरे पास शेक्सपियर। बट थिएटर्स के लिए वापस वो वन टेक में काम करना, क्रेजी, इतने सारे ऑडियंस के सामने सबके रिएक्शन आपको दिख रहे होते हैं ऑन द करेक्ट, स्पॉट। उसी समय पता चल रहा है। ऑडियंस तो हमारे फिल्म सेट पे भी होती है। मतलब आप ये देखिए कैमरे के पीछे भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारी ऑडियंस ही है। तो हम इवन ऑन अ फिल्म सेट वी आर कॉन्स्टेंटली जज्ड बाय पीपल, एंड एक्टिंग आई फील इज अ प्रोफेशन लाइक क्रिकेट आल्सो इज अ स्पोर्ट जिसका हर एक बंदे का ओपिनियन है जिसके ऊपर। मेरे को अगर बैट भी नहीं पकड़ना आता तो भी मुझे लगे यार ये कोहली ने शॉट ठीक नहीं खेला, ठीक है। तो एक्टिंग भी एक ऐसा, तो मुझे लगता है वो थिएटर और फिल्म में जो मेरे को लगता है बड़ी कॉमन चीज़ है कि एक ऑडियंस तो आपके पास हमेशा ही होती है। नहीं, कभी अगर आपको जो शूटिंग के टाइम पे लाइट में नहीं बोल देते हैं आपको कि यार दादा ये बहुत बढ़िया था, आपने ये जो किया बहुत बढ़िया, तो वहीं से वैलिडेशन मिल जाती है, अच्छा सही किया गया है। अच्छा, कभी कोई कंस्ट्रक्टिव और इन्होंने तो लाइटमैन को पैसे दिए थे बोलने के, इनको अक्सर आके बोला करते इन्होंने कहा था सुनो रोज का तुम्हें मैं दूंगा, तुम बात मेरे शॉट के बाद आते तुम उसको बोलना। क्या शॉट था? ओके, वन टेक अवे फ्रॉम द शो। मेरी तो जो इक्वेशन मैंने फॉर्म करी है गोपाल भाई के साथ, पूजन के साथ, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट टेक अवेज फ्रॉम द शो। And another thing that I actually did after the show, I really called my sister up, and I just said thank you to her because sorry, I'm getting really emotional.
He said that unknowingly you have protected me in so many ways that I never really understood and never really appreciated. And जब मैंने शो एक्चुअली में करा ना तो वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि कभी कभी बड़े भाई बहन आपको कुछ कहते नहीं हैं बट वो बिना कहे भी आपको कितना प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. सो आई जस्ट finished the show and I called up my sister and I just said a thank you. You've always been there for me and I hope it remains like that forever. I think that's the best thing ever, and I could just connect instantly because even I have an elder sister, and yeah, like she's less expressive, but I get it. Yeah. Emotional कर दिया जी आपने. आपने भी मुझे emotional कर दिया. But you need to show this interview to your sister for sure. She watches everything. She's my stalker. अच्छा तो I she'll think watch. उसका वो क्या Google alerts पे मेरा नाम लगाया हुआ. That's so sweet. आप बताइए बंटी को. सिमिलर यार, क्योंकि मेरी भी बड़ी बहन है, वो बाहर रहती हैं, तो मैंने कभी इतना मैं एक्नॉलेज नहीं करता था कि वो जब भी कुछ करती थी मेरे लिए, मैं शायद से थोड़ा सा मैं ऐसा था कि मेरे को हाँ ठीक है यार कर रही हैं, ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना, छोटा भाई हूँ वो बड़ी बहन है, तो मेरे साथ मेरी मम्मा मुझे कहती यार तो उसको बोल तो सही, उसने इतना कुछ किया, तो मैं बोलता कि अरे यार अब मुझे इस शो करने के बाद समझ आया कि वो जो भी करते हैं उनका कुछ रीज़न होता है. दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू इवन बीइंग माइल्स अपार्ट. तो वो सब चीज़ें देन आई रियलाइज कि यार हाँ आई शुड एक्नॉलेज दैट मोर. That's so sweet. And now, did you call her and acknowledge? हाँ, फिर तो उसके बाद से मैं वीडियो कॉल पे बात करते रहता हूँ. मतलब ऐसा पहले कम था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो जाएगा विद टाइम. बेस्ट चीज मुझे लगता है आप लोग की फैमिली बहुत खुश होगी आफ्टर दिस शो की. वाओ. I think so. I hope so. I hope so. I sincerely hope so. नहीं बट यही कहानी, यही एक अच्छी कहानी करती है कि आप अपनी ज़िंदगी जीने में इतने व्यस्त होते हैं कि एक अच्छी कहानी वही आपको बताती है कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़, आप उस कहानी में अपनी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन देखते हैं. तो आई थिंक वही एक टेक अवे है कि आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरा भाई भी तो ऐसा ही है या मेरी बहन भी तो ऐसी ही है. तो वो सबसे बड़ा टेक अवे आई थिंक. Now I can't just wait to go and watch this show. पर अभी Me भी 2 दिन है. अभी भी 2 दिन है. But yes, I think इसके बाद एक और सेशन इंटरव्यूज का होना चाहिए after me watching this show. But thank you so much. It was really nice and awesome having a conversation with you. Likewise. थैंक यू. Thank you. Hi guys, I'm Bhuvan Arora Hi guys, my name is Poojan Chhabra. गोपाल दत्त. and you're watching us on Awesome TV. Awesome. Simply awesome. Let you be awesome.